Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, first of all, I welcome you all in our institution. I am Sir Safdar, lecturer of English. I have been associated with teaching profession since the last 17 years. Yesterday, I provided you some notes, first lecture of your English book. That was just a formal lecture. I just wanted to introduce you something about language and literature. The aim was that you may get familiar with some basic terms of English language and literature. I hope you must have read those notes, and some of you have provided me in the written form the assigned task also. Just recapitulate what we studied in those notes. Difference between language and literature. These are two terms: English language, English literature. We have learned that language includes both spoken and written aspects of communication. When you are communicating with someone, whether in written manner or in spoken manner, it encompasses language, whereas literature is limited to written aspect. Literature is mainly a written aspect of a language. What is language? A system of communication. A system of communication between two people, between individuals. It is expressive. One is free to express his thoughts in a language. It is a source of discourse. Discourse we कहते हैं discussion. It's a source of discussion between two people. Definitely, it came before literature. Literature is derived from the language. First the language came, then its literature came. Both written and oral, I have explained. Then, literature refers to written or spoken material. If we talk about literature, it refers to something that is written, or sometimes when someone is reciting his poetry, so we say that he is speaking literature. The writer of literature, the poet of literature, tells his life experiences in his literature work. It is mainly imaginative. Can't exist without language. If there is no language, then there will be no literature. Mostly written. This is mostly in written form. These are some key points which I provided you in last day's lecture, first lecture. The main aim was to introduce you people to English literature, which you are now going to study. Literature, English literature basically is of three types, and all these three types are present in your first year book. These three types are prose, which includes novel and short stories, poetry, and plays or dramas, which are made to be performed, to be enacted. जिनका मकसद क्या होता है कि वो इसलिए लिखे जाते हैं कि वो स्टेज पर परफॉर्म किए जा सकें। तो बच्चों, लिटरेचर, जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो तीन
मेजर टाइप्स लिटरेचर में आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोज, नसर नगारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, या आपकी बुक में जो शॉर्ट स्टोरीज होंगी, अगर नॉवल का कोई एक्सट्रैक्ट होगा तो वो इंक्लूड होगा आपके प्रोज पार्ट में, PROSE, प्रोज। सेकंड पार्ट इज पोएट्री, पोएम्स जो हैं वो आपकी इस बुक में ये भी इंक्लूडेड है। एंड थर्ड पार्ट इज प्ले, ड्रामा, ये भी इस आपकी बुक में मौजूद है। सो all the three major components of literature are discussed in your book. Now come to your book. This is your book, a new edition, a test edition of Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar. There was a confusion some days back whether we will use the old book or the new book, but now the board has clarified that the latest edition of the books will be utilized. So you must purchase this book. Inshallah, after Eid, when we will start reading of your book, all of you must have your books with you. Without books, you can't focus, concentrate on the task assigned. Moreover, students, now you are first year students, start preparing the notes of the each lecture which is provided to you. Listen carefully and then prepare the notes of each lecture, whatever the subject may be. You must have the habit of making the notes of each subject, and especially of English. You must prepare notes of each lecture which is provided to you, whether in this online mode or in actual classroom atmosphere. Now students, today's lecture is very important because I am giving you policy guidelines and paper pattern of your first year English paper. If you go to website of Federal Board, you can download these policy guidelines, this sample paper from FPIEC website. I will also provide you these notes in WhatsApp group. Policy guidelines for English paper. I will read it for you. The question paper is organized into following three sections. First of all, he is saying that the question paper is divided into three major sections. Section A, Section B, and Section C. Question posed may be text-based or derived unseen, but in similar pretext and difficulty level as per the lesson taught in the course. इस बात को समझिएगा कि ये क्या बात की जा रही है, and it's very important. Question posed, the question which will be asked may be text based. जो आपके text based है, जो आप lesson पढ़ेंगे, उसके बाद जो सवाल किए गए हैं, तो पेपर में पूछे गए सवाल तो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं और डिराइव्ड, या उनसे डिराइव किए जा सकते हैं, उनसे अखज़ किए जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, अनसीन भी हो सकते हैं। कीप इट माइंड कि जरूरी नहीं है कि वो रट्टे वाले सवाल आ जाएंगे, अनसीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, but in similar pretext and difficulty level as per the lesson taught in the course. लेकिन बच्चों यहाँ उसने क्लियर कर दिया कि वो जो अगर अनसीन भी पूछेगा उनका भी डिफिकल्टी लेवल वही होगा जो आपके सीन क्वेश्चन का, यानी ये नहीं होगा जाएगा कि बहुत मुश्किल सवाल आ गए समझ ही नहीं आया, उसी मेयार के सवाल होंगे, अनसीन हो सकते हैं लेकिन उसी लेवल पे होंगे जैसी आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। क्लियर?
एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको समझाना है, फिर मैं पेपर पैटर्न की तरफ आता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निटिव डोमेन विद इन ईच सेक्शन शैल रफली बी अराउंड 30% नॉलेज। इस बात को समझेंगे, 30% नॉलेज, 50% अंडरस्टैंडिंग and 20% एप्लीकेशन। इसको कैसे समझेंगे नहीं हम, जो कह रहा है कि आपके सारे पेपर में जो सवाल होंगे उनको हम इस तरह तरतीब दे देंगे कि बस में वो क्या चेक करना चाह रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि 30% ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी चेकिंग योर नॉलेज, क्या आपका नॉलेज कितना है इस चैप्टर के बारे में, इस चीज के बारे में जो आप रीड करके आए हो। 30% ऑफ दीज विल बी ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, 50% ऑफ दोज विल बी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। नॉलेज तो बच्चों हो जाता है ना सामने की बात कि विच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये आपका नॉलेज है, ठीक है। साथ साथ जो सामने डेट ऑफ बर्थ, फिगर्स, ये सब चीजें आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंडिंग, क्या आप उस बात को समझे कितना हो, जो लाइन के अंदर की बात है, यानी जो मकसद आपको था वो लेसन पढ़ाने का, आप वो समझे हो कि नहीं समझे, अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे वो 50% ऑफ ऑल द क्वेश्चंस होंगे। एंड लास्टली अप्लाई करना, वो जो आप समझे हो क्या उसे आप अपनी लाइफ पर, अपने इर्द गिर्द लोगों की लाइफ पर, अपनी सोसाइटी पर अप्लाई कर सकते हो। दीज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 20%। इनको मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस चीज को, इंशाल्लाह जब क्लासरूम एटमॉस्फेयर में आएंगे तो इस पे मुकम्मल एक और डिटेल में आपको लेक्चर दे दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से बता दूं कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स to recall the learned or memorized information or data, learned or memorized information, जो वो रट्टा लगा के आया है, memorized information है जो उसके पास, उसको recall करने का नाम knowledge है। अच्छा, अब पेपर में ये किस तरह के सवाल होते हैं कि सवाल देखते ही आप बता दें कि ये these are knowledge based question। फर्स्ट करेगा कोई सवाल आ गया जी, अरेंज दीज थिंग्स, इट इज योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ गया है डिफाइन, इट इज आल्सो अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आ गया है डुप्लीकेट, लेबल, लिस्ट, मेमोराइज, नेम द थिंग्स, ऑर्डर, रिकॉग्नाइज, रिलेट, रिकॉल, रिपीट, तो बच्चों ये तमाम नाम जब आ रहे हैं क्वेश्चन में तो इसका मतलब है ऐसे सवाल के अंदर आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है, आपकी मेमोराइजेशन चेक की जा रही है। तो ये क्वेश्चन टोटल पेपर का बच्चों 30% होंगे। उसके बाद आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग आल्सो कॉल्ड कंप्रीहेंशन, एक और लफ्ज भी है जिसका कंप्रीहेंशन refers to ability of the candidates to comprehend समझना a set of information, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको समझा है या नहीं समझा, या सिचुएशन को, and provide response to it accordingly, और फिर उसके मुताबिक वो रिस्पांस दे सकता है कि नहीं दे सकता। इसके सवाल किस तरह के होंगे पेपर में, आप कैसे बता सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे क्लासिफाई आदि, क्लासिफाई दीज थिंग्स, डिस्क्राइब, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह डिस्कस, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, आइडेंटिफाई, इंडिकेट, लोकेट, रिकॉग्नाइज, दीज आर ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल आपके पूरे पेपर में 50% होंगे जी। लास्ट कम टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन व्हिच आर 20% ऑफ योर ऑल ओवरऑल क्वेश्चंस। एप्लीकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल, जो आपने सीखा है फिर उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत इन अ न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन, किसी और सूरत हाल, जो सीख के आए हो किसी और सूरत हाल में जाकर उसको अप्लाई करने की सलाहियत है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए तो दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस।
इसको हम कैसे रिलेटेड चीजों से यानी देख के कैसे बता देंगे कि दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अप्लाई दीज थिंग्स, अगर अप्लाई आ रहा है वो चूज, डेमोन्स्ट्रेट, ड्रामेटाइज, एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, ये सारे के सारे लफ्ज अगर आ रहे हैं तो these are the indication that this question is an application based question। लेकिन स्टूडेंट्स समझ आ गया कि बोर्ड ने यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बता दिया है उन्होंने हमें कि आपके जो ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे 30% क्वेश्चंस जो है वो आपकी नॉलेज को चेक कर रहे होंगे, रट्टे को चेक कर रहे होंगे, 50% जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो समझाया गया है, जो थीम है वो समझे हो कि नहीं समझे, और 20% जो है क्या उसको समझने के बाद आप अपने एक्सपीरियंसेस में उसको इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते। दीज आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चों ये हो गया। अब आ जाएंगे आपके डिवीजन ऑफ मार्क्स पे, इसको नोट करते जाएं साथ साथ। कोई क्वेश्चन अगर होगा तो you can ask me WhatsApp group। डिवीजन ऑफ मार्क्स सबसे पहले है कि आपका सेक्शन ए, दैट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। You are provided with 20 MCQs and you have to solve this portion in 25 minutes। You are given 25 minutes and there are 20 MCQs, which each MCQ has 4 options, A, B, C or D। You have to choose the correct one। चार में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है, वेदर A, B, C और D। अच्छा, कि 20 MCQs की डिवीजन कैसी है ये भी जरा समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी इस बुक में कुछ पार्ट प्रोज का होगा, कुछ पार्ट पोएट्री का होगा और कुछ पार्ट प्लेस का या ड्रामा का होगा। इसी एक बुक के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। कुछ पार्ट प्रोज यानी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह आ जाएंगी, कुछ पोएम्स हैं और प्ले है, एक है प्ले भी मौजूद है, तो उसके मुताबिक भी सवाल इसमें पूछ लिया जाएगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है जी 20 नंबरों की, जरा समझिएगा कि जो लेसन्स हैं, जो प्रोज के लेसन्स हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, 8 आइटम्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज लेसन्स। उन 20 में से 20 नंबरों की अगर डिवीजन करेंगे एमसीक्यूज की, तो 8 नंबर बच्चों कहां से आएंगे? वो जो आप लेसन्स पढ़ेंगे उनके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, वो उसके राइटर के मुताबिक हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग्स हो सकते हैं। तो 8 आइटम्स विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में भी कौन सारी लेसन्स के अंदर से आपकी 8 आइटम्स होगी। इसी टेक्स्ट बुक के अंदर से आपके पास 2 आइटम्स आ जाएंगी फ्रॉम योर पोएम्स। 2 ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, 2 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो पोएम्स के मुताबिक कोई चीज पूछ रहे होंगे। तो ये टोटल हो गए 10। एक एमसीक्यू ऐसा होगा जो कोई भी फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा होगा। फिगर ऑफ स्पीच से क्या मुराद है, थोड़ा बहुत आप 9th 10th में आपको आइडिया है, इंशाल्लाह आगे चल के मजीद इस पे बात करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच की ये सिमिली है, मेटाफर है, इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इंशाल्लाह डिटेल्ड लेक्चर होगा इस चीज पर भी आगे चल के। तो ये बेटो 11 हो गए। लास्ट वन विल बी फ्रॉम प्ले। प्ले के अंदर से भी एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 12 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। 8 आइटम जो है वो लेसन्स के अंदर से आ जाएंगे, 2 पोएम्स के अंदर से, एक फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाएगा और एक टेस्ट आइटम जो है वो प्ले के अंदर से आएगा। एंड रिमेनिंग 8 विल बी फ्रॉम ग्रामर। जो ग्रामर हम पढ़ेंगे इस पूरा साल, उसके अंदर से 8 एमसीक्यूज आइटम्स आपसे पूछे जाएंगे। और क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम ग्रामर में से
we are going to study phrases, its types, clauses and its types, structure of sentence, कि क्या structure है, ये कैसा sentence है, simple है, complex है, compound है, parts of speech और parts of speech nouns है, फिर आगे nouns की kind है। तो बेटा ये यहाँ पे थोड़ा नजर आ रहा है, but it is quite a hefty work, काफी लंबा चौड़ा काम है जो हमने ग्रामर में पूरे साल के दौरान करना है। तो that constitutes your 20 marks of MCQs. Now come to your section B. Section B में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बुक के अंदर जो लेसन्स हैं, और मैं बता चुका हूं कि वो कैसे होंगे। 30% नॉलेज चेक करेंगे, 50% अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे और 20% एप्लीकेशन चेक करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताया जा चुका है कि उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्स्ट वाले भी हो सकते हैं और अनसीन भी हो सकते हैं, लेकिन उसी डिफिकल्टी लेवल के होंगे। तो 9 questions will be given to you. There will be 9 questions and you have to answer 7 those of 9 questions. जो 7 सवाल दिए जाएंगे, 9 सवाल दिए जाएंगे, उन 9 क्वेश्चंस में से आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर करना है। और कैसे आंसर करना है जी? इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। स्ट्रिक्ट कर दिया है बोर्ड ने, यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। कि लाइंस का तस्वीर नहीं लाना है, यहाँ पे कितनी लाइंस होंगी, वर्ड्स का तस्वीर है। यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। 5-7 लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कम लिखा है या बहुत ज्यादा लिखा है तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाएंगे। फिर आपने अपने हर क्वेश्चन को, ये टोटल 7 सवाल आपने जवाब देने हैं। ये जो हम लेसन्स पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से ये 9 सवाल पूछे जाएंगे और 9 में से आपने 7 सवालों पे जवाब देने हैं। हर सवाल के 4 नंबर हैं और ये टोटल बन गए आपके 28 मार्क्स। 7 multiplied by 4, 28। फिर समझिए इस क्वेश्चन को। आंसर एनी 7 parts of the following questions in about 40 to 50 words। 40 से 50 लफ्जों में आपने हर सवाल का जवाब देना है इन द लाइट ऑफ टेक्स्ट बुक। वो जो टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ के आए हो उसकी रोशनी। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 2 parts of this question, A and B. In A part, ये पोएट्री से मुताल्लिक है। जो पोएम्स पढ़ेंगे ना हम इस बुक के अंदर से, अपनी इस बुक में से जो हम पोएम्स पढ़ेंगे उससे ये सवाल होगा। अभी किस तरह होगा ये? A पार्ट में आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा। ये आप 9th 10th में इस तरह का सवाल करके आए, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। कि स्टेंजा एक दे दिया जाएगा किसी भी पोएम्स में से, उससे रिलेटेड 3 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। 2 नंबर का एक सवाल होगा, 6 मार्क्स का इसका A पार्ट होगा और B पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का, ये कोई थीमेटिक क्वेश्चन होगा। ये थीम से रिलेटेड कोई बड़ा सवाल होगा पोएम का, एक ही सवाल होगा एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। 60 से 70 अल्फाज में इन 6 नंबरों के लिए आपने आंसर करना है फ्रॉम योर पोएम्स। अच्छा, अब इसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं? क्वेश्चन रिलेटेड टू द थीम से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, सेंट्रल आइडियाज आ सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर, पोएम में कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस किया गया है, एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तनकीदी जायजा आ सकता है उस पोएम का जो आप पढ़ेंगे। So these are 2 questions from your poems of 12 marks, 6 marks का stanza और 6 marks का thematic question. That concludes your section B. आपका यहाँ पे section B मुकम्मल हो जाता है 40 नंबर का। 20 नंबर का section A था, 40 नंबर का section B था, जो यहाँ पे 28 नंबर का question 2 है और 12 नंबर का 2 पार्ट वाला question 3 है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4, जो प्ले इंक्लूडेड है आपकी इस बुक के अंदर, उससे रिलेटेड
रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 में से एक सवाल, और ये भी आपने 60 to 70 वर्ड्स का इसको आंसर करना है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जो प्ले है उससे रिलेटेड सवाल, वो भी इस बुक के अंदर मौजूद है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक लेवल सेपरेटली पूछा जाएगा, जिसमें से आपने 2 में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आप 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पार्ट्स बनेंगे जिसके A, B and C। ओवरऑल ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। अब ये 3 पार्ट्स कैसे बनेंगे? A पार्ट में आ जाएगा कोई फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब के साथ जब डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगती जाती हैं तो डिफरेंट मीनिंग देता जाता है। जैसे ब्रेक एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ आप प्रेपोजिशन चेंज करते जाओगे, ब्रेक इन का और मतलब होगा, ब्रेक इनटू का और मतलब होगा, ब्रेक डाउन का और मतलब होगा। तो these things are called phrasal verbs. You will be given 7 phrasal verbs and you have to use 5 of them in your sentences. 7 में से 5 phrasal verbs को आपने अपने sentences में यूज करना है। और जाहिर है जब आपको सही मतलब पता होगा उस phrasal verb का, तभी आप उसको sentences में सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे। पार्ट बी इसका जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने, कि ये जो जुमला दिया गया है इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, दूसरी लगती है, तीसरी लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगता है कि नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन आप 9th में कर चुके हैं, 9th 10th में ये क्वेश्चन हो चुका हुआ है, फ्रेजल वर्ब भी हो चुके थे, तो दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ भी 7 सेंटेंसेस होंगे, इन 7 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 नंबर के फ्रेजल वर्ब्स, 5 नंबर का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी पार्ट इसका आ जाएगा पंक्चुएशन। you have to use the punctuation marks in a given passage. Punctuation marks क्या होते हैं कि you have to put the commas, inverted commas, question marks, sign of exclamation at the right place, capitalization. This question is also being done by you in your 9th 10th papers. Next students, question number 6. You will be given an application or formal letter. Application or formal letter, यानी या तो एप्लीकेशन होगी या फॉर्मल लेटर होगा। कितने मार्क्स का जी? 6 मार्क्स का, और इसका बोर्ड ने बाकायदा पैटर्न भी दिया हुआ है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन आवर लेटर क्लासेस। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 7, पैराग्राफ और ट्रांसलेशन। You will be given a topic to write a passage, a paragraph on it, about 70 to 80 words, and also you will be given a paragraph of Urdu which you have to translate in English. ये चॉइस है बच्चों, यहाँ पे चॉइस क्या है कि या पैराग्राफ लिखें या ट्रांसलेशन करें 6 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे फिर एक चॉइस आ गई है कि आप डायलॉग लिखें, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, डायलॉग लिखें 7 to 8 sentences of each person, and if you are not interested in writing a dialogue, you have to write a CV. आपने अपनी एक CV देनी है, प्रोवाइड करनी है about a given topic, about a given situation. आपने अपना बायोडाटा परफॉर्म करना है। तो इसका मेथड भी डिटेल इंशाल्लाह we will discuss in our class. So students, that's all for your paper pattern and syllabus. There might be some amendments from the board in the coming days, but so far this syllabus is final. कोई ना कोई बोर्ड की तरफ से इसमें तरमीम हो सकती है, लेकिन अभी ये फाइनल है, आप इसी को फॉलो करें। अगर कोई तरमीम आती है, कोई इसमें रेक्टिफाई करना है, कोई चीज़ कम या ज़्यादा होती है, तो वो आपको बता दी जाएगी। तो
बच्चों अब जो नेक्स्ट लेसन हैं आपके, अब थोड़ा सा ये ब्रेक आएगा क्योंकि आज सेकंड लेक्चर है, एक वीक में आपके 2 लेक्चर्स ही हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है ईद वाला, और उसके बाद का कुछ अर्सा जो है 3-4 दिन तो लेक्चर्स नहीं होंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे दोबारा लेक्चर तो आपको डेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वी विल स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक इंशाल्लाह। टेक्स्ट बुक से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसके अंदर कितने लेसन हैं, कौन कौन सा लेसन किस तरह है, उसका जो आया जो प्रोज से है, पोइट्री से है, या उसकी बेसिक थीम क्या डिस्कस हो रही है। अगेन इफ देयर इज एनी इशू यू कैन डिस्कस मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन text me privately as well. Thank you students, that's all for today.